اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ گڑھوا کا رہنے والا ہوں میں تھا بڑا غریب، عشق رسول پاک نے چمکا دیا نصیب۔ گڑھوا کا رہنے والا ہوں میں تھا بڑا غریب، عشق رسول پاک نے چمکا دیا نصیب۔ اے حاضرین بزم میرا لیجئے سلام، مائک پہ نظامت کے لیے آ گیا طبیب۔ سنت مصطفیٰ کانفرنس میں تشریف فرما ملک و ملت کے مائے ناز علماء کرام، شورائے اسلام، سامعین محفل پردے میں بیٹھ کر جلسہ سماعت کر رہے اسلامی رشتے کی ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات میں نے محبت کے ساتھ سلام عقیدت پیش کیا، یقینی طور پہ آپ حضرات نے جواب دیا، مگر جس تیور کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا تھا جواب میں تھوڑی سی کمی پائی گئی، جبکہ ایک موقع سے شاد عظیم آبادی نے کہا تھا کہ محبت کا محبت سے ملے کچھ تو جواب، آخر وفاؤں کے عوض ظلم و ستم اچھا نہیں لگتا۔ ایک بار میں پھر سلام کیے لیتا ہوں، مکمل جوش ایمانی کے ساتھ جواب دے کر یہ بتائیے کہ ہم مکمل ذہنی بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ نہ ہوئی نبی کے چاہنے اور ماننے والوں کی بات، انشاءاللہ الرحمن آج دنیا دیکھے گی کہ ہردیہ کی سرزمین پر، جس سرزمین پر سرکار صوفی منظور شاہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، اس پاکیزہ سرزمین پر بیٹھے ہوئے سنت مصطفیٰ کانفرنس کے سامعین جب نبی کی نعت اور نبی کی بات سے اتنا پیار کرتے ہیں تو نبی کی ذات سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عزت مآب جناب عبد القادر صاحب کے تمام شہزادگان کو، چاہے وہ جناب ذاکر حسین صاحب ہو یا پھر شوکت علی صاحب ہو، یا اس سنت مصطفیٰ کانفرنس جو عقیقہ مسنونہ کے حوالے سے منسوب ہے یہ پورا جلسہ۔ میں تمام ذمہ داران حضرات کو مبارکبادی کے جملے پیش کرتا ہوں، اور جتنے بھی ہردیہ اور اس علاقے کے محتشم علماء کرام عبقری شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، میں تمامی حضرات کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر سفر کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ ابھی میں صرف 1 منٹ کے لیے مائک پہ آیا ہوں، انشاءاللہ الرحمن جیسے جیسے وقت آئے گا ہم آپ سے محو کلام ہوتے جائیں گے، اور اگر آپ حضرات نے ذوق و شوق کا ماحول بیدار رکھا تو آج مکمل خدمت کرنے کی کوشش کریں گے ہم۔ مجھ سے پیشرو نقیب جناب محفوظ صاحب نے بہت خوبصورت ترین انداز میں آپ تمامی حضرات کو اشعار سنائے، لیکن انشاءاللہ آپ حضرات بس محبتوں کے ساتھ بیٹھیے اور طبیب عالم طبیب اور دیگر علماء کرام کی دعائیں حاصل کرتے رہیے اور مجھے بھی دعاؤں سے نوازتے رہیے انشاءاللہ الرحمن۔ یہ جلسہ چونکہ گریڈی ضلع کا جلسہ تو آج تک ناکام ہوا ہی نہیں، تو سوال ہی نہیں ہے کہ ناکام ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ضلع ایسا ہے کہ الحمدللہ گریڈی اور گڑھوا جھارکھنڈ میں ان اطراف کے جو علماء شورا خطبہ ہیں الحمدللہ ملکی سطح پہ اپنی شناخت قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہیں سے کوئی دقت نہیں ہے، ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیے۔ جو حضرات سڑک پہ کھڑے ہیں میں ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ تمامی حضرات وہاں کیوں کھڑے ہیں یہ بتائیے، ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہو رہے ہیں، ارے آپ یہاں لا کر کے بیٹھیے ادب و احترام کے ساتھ، ہے نا، یہ جلسہ آپ کا ہے، اگر آپ حضرات آ کر کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر ہم کس کو سنائیں گے، ہے نا، اس لیے میں گزارش کروں گا آپ تمامی لوگوں سے کہ آؤ باب قبول میں آؤ، رحمتوں کے نزول میں آؤ، زندگی جھوم جھوم جائے گی، آؤ بس میں رسول میں آؤ۔ اگر واقعی میں آپ اپنا خابیدہ مقدر جگانے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو آپ آ کر کے بیٹھیے، اور جو حضرات یہاں بیٹھ چکے ہیں میں ان سے گزارش کروں
करूंगा कि जो लोग हट हट के बैठे हुए हैं जरा वो लोग सट के बैठ जाइए, है ना। आप लोग जरा एक एक बालिश आगे आ जाइए, एक एक कदम आगे आ जाइए भाई। अरे सभी लोग आ जाइए। क्या मोहब्बत का तकाजा है कि हट कर बैठिए। अरे आइए सरकार की महफिल में डट कर बैठिए। क्या मोहब्बत का तकाजा है कि हट कर बैठिए। आइए सरकार की महफिल में डट कर बैठिए। है अगर सच्ची मोहब्बत सरवरे कौनैन से तो हो गया जलसा शुरू, अब तो सिमट कर बैठिए। आ जाइए जरा करीब आइए। आप लोग भी पीछे वाले लोग भी जरा आ जाइए करीब आइए। जो लोग नहीं आना चाहते हैं मैं उन पे जबरदस्ती किसी तरह ऐसे मैं उनके करीब होने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं बारहा उन्हें देख रहा हूं कि बस आपकी वजह से बहुत सारे लोग वहां खड़े हैं। अगर आप लोग बैठ जाते तो यके बाती गिरे सारे नौजवान यहाँ आ जाते। आ जाइए जरा सा आप लोग करीब आ जाइए। इंशाअल्लाह आज का ये जलसा इन उलमाए किराम के कदम के वसीले से बरकतों से इंशाअल्लाह बहुत कामयाब होगा। आ जाइए आ जाइए सभी लोग अदब एहतराम के साथ बैठिए। और माशाअल्लाह हमारे समीर आलम ऑफिशियल चैनल वाले और दिगर भी चैनल वाले आए हुए हैं बहुत सारे, है ना माशाअल्लाह। अच्छा वो भी आए हुए हैं माशाअल्लाह। ये सारे चैनल वाले हैं तो एक एक मिनट एक एक सेकेंड मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम को कवर करेंगे, सर्विस देंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। स्टेज मोहब्बत पे वो शायर मौजूद है जो देखने में तो बहुत छोटा है मगर शोहरतों का कद उसका बहुत बुलंद है। हजरत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी साहब बैठे हुए हैं, हमारे बिलाल साहब बैठे हुए हैं, हमदम साहब बैठे हुए हैं और जितने भी स्टेज मोहब्बत पे हमारे शोरा खुतबा बैठे हुए हैं। मैं तमामी उलमाए किराम की बारगाह में मोहब्बतों का खिरात पेश करता हूँ। अब बस ये समझ लीजिए कि इश्तिहार में जिन जिन शख्सियतों का नाम आपने पढ़ा है, सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब के सब तशरीफ ला चुके हैं। और कुछ शख्सियतें ऐसी हैं कि वो रात के किस हिस्से में उनकी ज़ियारत हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके तमाम बावकार शोरा हाजिर खिदमत हैं। हजरत गुलफाम रजा हसानी भी स्टेज पे आने वाले हैं, दिलबर शाही साहब भी आने वाले हैं। इन तमामी शोरा से आपको रूबरू होना है। अब बिला ताखीर मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने एक करीब के शायर को समाअत कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी की बारगाह में मैं चलूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा आप अपनी बेदारी को सबूत पेश करें। पूरा मजमा मेरे नाम पे नहीं, स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम के नाम पे नहीं, उस अजीम हस्ती के नाम पे सुभान अल्लाह कहें जिनके दम कदम से और जिनकी कोशिशों से और जिनकी खिदमत की बुनियाद पे ये पूरा इलाका सुन्नियत से लबरेज है। सरकार मंसूर मिल्लत के नाम पे पूरा मजमा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा सभी लोग का हाथ उठ जाए, पूरा मजमा सभी लोग एक मर्तबा झूम के कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग अब खामोश रहिएगा, मैं स्टेज पे देखना चाहता हूँ। महफिले जिक्र नबी सज गई माशाअल्लाह, नाक के गूंजेंगे नगमात भी इंशाअल्लाह। इससे पहले के कोई शायर मुकर्रिर आए, अहले मेंबर भी कहे झूम के सुभान अल्लाह। अब मैं उलमाए किराम की बारगाह में 4 मिसरे पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह आप जैसा चाहेंगे हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। अभी बस 4 मिसरे मयारी समाअत कर लें। आप हजरात तो बोलेंगे इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है कि इन 4 मिसरों पे हमारे उलमाए किराम बस दुआओं से नवाज देंगे तो कामयाबी की शुरुआत यहीं से हो जाए, है ना। देखिए 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कमर भी टूटा है, सूरज भी शाम से निकला। मैं ये साबित करूंगा कि बिलाल भाई ने इतना मोटा ताजा नकीब जो बुलाया है ना, मैं उसको जाये नहीं होने दूंगा। जी क्या बात है, वाह वाह वाह। दिन भाई एक बार दवा क्या है कि एक साहब ने हमसे पूछा कि तबीब भाई बहुत मोटे ताजे लोग खुशमिजाज क्यों होते हैं? हमने कहा कि भाई खुशमिजाज नहीं होंगे तो और क्या होंगे, इसलिए कि न वो सही तौर पे लड़ पाएंगे न सही टाइम पे भाग पाएंगे। तो खुशमिजाज होना उनकी मजबूरी है, है ना। आप LIC एजेंट के पास अगर बैठते होंगे जो जीवन बीमा करता है, आप उस एजेंट के पास बैठिए, 10 मिनट अगर आपने उसको टाइम दे दिया तो वो बंदा साबित करके उठेगा कि
जीने से ज्यादा मरने में ही फायदा है। हाँ जी समझ रहे? तो अगर आप लोग खामोशी में ज्यादा फायदा समझ में आ रहा है तो बस ऐसे ही सुनिए, लेकिन उलमाए किराम इंशाअल्लाह मोहब्बतों से नवाजेंगे। सुने एक मर्तबा जरा कहते सुभान अल्लाह। कमर भी टूटा है, सूरज भी शाम से निकला, वही हुआ जो नबी की जबान से निकला। अब एक ऐसा मफहूम आने जा रहा है कि इंशाअल्लाह उलमाए किराम मुझे दुआओं से नवाजने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक ऐसा मफहूम मैं लाने जा रहा हूँ। हजरत हमदम शाही साहब चंद शेर का खूबसूरत नजराना लेकर आने वाले हैं। मैं उनकी बारगाह में चल रहा हूँ, उससे पहले ये 4 मिसरे सुनिए। यही 4 मिसरे की बेदारी ये साबित करेगा कि आपको रात भर किस तेवर के साथ बोलना है। देखिए, कमर भी टूटा है, सूरज भी शाम से निकला, अरे वही हुआ जो नबी की जबान से निकला। अली को भेज कर बोले ये बद्र में आका, ये पहला तीर हमारी कमान से निकला। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, मोहब्बत से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जनाब तबीब आलम साहब तबीब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। अभी सरकार गरीब नवाज की बारगाह में महफूज भाई चंद मिसरे पढ़ रहे थे। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं कहता हूँ हजरत, बस इतना कहता हूँ कि 3G और नहीं 4G से चलता है, हमारा काम तो मौला अली से चलता है पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। पूरे मुल्क में नेटवर्क मेरे ख्वाजा का, ये मुल्क ख्वाजा हिंदल वली से चलता है। हजरात बहुत खूबसूरत अंदाज में आप समाज कर रहे हैं, बस जो लोग खड़े हैं अगर वो लोग बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता। हम उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो हजरात रजाकार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, वो अपने तमाम तर साथियों को बैठने के लिए गुजारिश करें, आग्रह करें और उनकी बारगाह में इल्तिमास करें। लीजिए हजरात, अब हमदम शाही की बारगाह में मैं चल रहा हूँ, एक शानदार नारा लगाइए और यहीं से अब शोराए किराम आपके हवाले होने जा रहे हैं। मैं उन्हें आपके हवाले कर दूं बारी बारी, उससे पहले आपके साबित करिए कि हम तमाम शोरा के तमाम तर कलाम के एक एक मिसरे पे सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार है। नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए कि ये हरदिया का नारा है? अरे भाई हरदिया का नारा है, नारा जब इतना कमजोर होगा तो फिर आप क्या करेंगे, है ना? जरा बुलंद आवाज से हाथों को लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर। अच्छा ये बताइए जो लोग कुर्सियां संभाले हैं वो लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे क्या? अरे भाई आप VIP हैं तो अपने चेंबर में VIP होंगे, बस में नबी में हर इंसान बराबर है। वाह। तो जरा हाथ उठाकर नारे का जवाब देकर ये बताइए कि हम भी यहाँ आए हैं तो इस घर से नहीं आए हैं कि टाइम पास करें, हम इस घर से आए हैं कि महफिल रसूल में बैठकर हम अपने खाबीदा मुकद्दर को जगा कर घर वापस जाएंगे। हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरीया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लबों पे अपने हैं नाते रसूल के नगमे, ये किसने कह दिया कि हम उदास बैठे हैं? सुनाओ नाते नबी झूम कर जरा हमदम, लगे के गुंबदे खदरा के पास बैठे हैं।